A very good morning and Jai Hind 12th class. Today I will teach you your first unit continue national income and related aggregates. So students, today we will start chapter 3rd measurement of national income, and this chapter in initially totally theoretical, so I am not using today's whiteboard, and I am use your notes student. And I hope in before discussions of measurement of national income or how can measure the national income, you have already clear some basic concept related measurement of national income in chapter 1st and chapter 2, like circular flow of income and expenditure, which is very important topic, and gross investment, depreciation, net factor income abroad, net indirect tax, GDP, and related aggregates concept. So if you people are clear these concept, then you will easily understand measurement of national income. So students, first topic is phases of production, income and expenditure. What are the phases? There are three phases in economy. We are aware that production, income and expenditure. Production, income and expenditure. Students, these three words is very important, and in whole chapter we will discuss around of it. Production, income and expenditure are three related phases which go on continuously in an economy. यानी इकोनॉमी में क्या रहता है? प्रोडक्शन होते रहता है, देन बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन इनकम जनरेट होती है, और देन इनकम लोगों की पॉकेट में आती है, तो देन आफ्टर दे आर एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी. So it which go on continuously in an economy. The production process generate income because production itself is a continue process. तो प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या होता है? इनकम जनरेट कैसे होती है? कैसे बेटा? बिकॉज by the help of productive activity in production process we have used factor of production like land, labor, capital and entrepreneur. Then after, when goods produced by these help of the factor of production, we have to pay in the form of rent, interest, wages and profit. तो by the help of production क्या हुआ? इनकम जनरेट हो गई. देन आफ्टर क्या करेगी? इनकम गिव परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. इनकम से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, विच दे स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर नीड्स. उसका क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उनकी नीड्स है उसी के अकॉर्डिंग उसको स्पेंड करेंगे. अगेन दिस एक्सपेंडिचर, उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, यानी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर किसकी इनकम बनती है? प्रोड्यूसर का. अगेन दिस एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन एंड इट इज कंटिन्यू टू राउंडेड एंड राउंडेड one sector to another sector. So it is a continuous process. What continuous process? Production, income and expenditure. Thus there is a circular flow. Circular flow आ गया ना, you have already aware in chapter 2nd. Thus there is a circular flow of production, income and expenditure in the economy. This circular flow regular चलता रहता है. I hope clear होगा. There are three phases in the economy. Your topic was phases of production, income and expenditure. Getting three phases में क्या? पहले प्रोडक्शन होगा, by the help of production इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होने के बाद उसका आपने मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर कर दिया अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. तो दीज थ्री फेसेस कंटिन्यू रेगुलरली चलते रहते हैं इकोनॉमी में. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर चैप्टर नेम मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनआई, दैट इज नेशनल इनकम. So how can national income measure? Students, measurement of national income ये आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल इसमें आना ही आना है बोर्ड में. गेटिंग देयर आर 3 मेथड्स. अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग कैन बी मेजर बाय 3 डिफरेंट मेथड. यहाँ पे ये और सुनिए स्टूडेंट्स, तीनों मेथड्स में से एग्जामिनर कोई भी एक मेथड्स का आपसे पूछेगा, तो यू हैव टू डू 3 मेथड्स, और 3 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड से नेशनल इनकम आपसे वो या जीडीपी मेजर कराएगा. गेटिंग, आई होप आप लोग तीनों को क्लियर कर जाओगे. फर्स्ट देखो, फर्स्ट मेथड क्या है आपका? प्रोडक्ट मेथड, दैट इज प्रोडक्शन मेथड, और यू कैन सी वैल्यू एडिड मेथड. प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड. वैल्यू एडिड मेथड मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. यानी स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस
later on in detail. So normally what do you mean by value added method? Value added method measure the value of goods and services produced. कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी फाइनल वैल्यू को ही वैल्यू एडेड बोलते हैं. गेटिंग स्टूडेंट्स? ओनली 1 मार्क्स का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस एनेबल अस अंडरस्टैंड टू परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इन टर्म ऑफ द target set before us. By the help of this product method we can easily identify the country's performance कि टोटल कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है. गेटिंग? सो नॉर्मली 1 लाइन की डेफिनेशन है वैल्यू एडेड मेथड मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी. सेकेंड इज इनकम मेथड. इनकम मेथड मेजर द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम बेटा फैक्टर प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. और उसी को जो फैक्टर पेमेंट करते हैं आप, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. दिस इज फैक्टर इनकम. गेटिंग? मेजर द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या कर रहे हैं? इनकम जनरेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. This enable us to understand the contribution made by different factor of production in the economy. कि how much contribution each factor of production in the country. How many factor of production? There are 4 factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. तो उनका कितना contribution है? Getting students? And last topic is expenditure method. Very very important method student. Expenditure method मेजर द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस पे एक्सपेंडिचर? टोटल गुड्स और सर्विसेज पर. दिस इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. बिकॉज कंजप्शन पे भी आप लोग क्या कर रहे हो उसको एक तरह से एक्सपेंडिचर, सेविंग पे एक्सपेंडिचर तो नहीं है लेकिन आपने अपनी पॉकेट मनी में कुछ सेव कर लिया है या बैंकों में या जैसे भी है. कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर ही होता है प्रोड्यूसर का. Behavior of the economy. So students, all the 3 methods, which 3 methods? Production method, income method and expenditure method give the same estimate of national income. So by the help of these 3 methods we can easily calculate national income. These 3 methods require different set of data. यानी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाटा वहां पे गिवन होगा. एडॉप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड. अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है? इट इज डिपेंड ऑन द डाटा. जिस क्वेश्चन का उसने डाटा दे रखा है. गेटिंग स्टूडेंट? दीज 3 मेथड रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ डाटा. एडॉप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड द पर्पस फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड. यानी आप लोगों को डाटा जिसके बेसिस पे, अगर उसने प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा दे रखा है तो यू हैव टू यूज प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड. अगर उसने इनकम से रिलेटेड दे रखा है यानी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट दे रखा है तो यू हैव टू यूज इनकम मेथड. और अगर उसने कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये सब दे रखा है तो यू हैव टू यूज स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड. सो आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है ये हम लोगों को अपनी नहीं लगाना इसमें. इट इज डिपेंड ऑन द डाटा. डाटा पे डिपेंड है. जो भी उसने दे रखा होगा पर्टिकुलर मेथड्स वही हमें यूज करना होगा. वी हैव टू. गेटिंग? हमें वो करना ही पड़ेगा. गेटिंग स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक बिफोर द मेजरमेंट ऑफ डिस्कस कि हाउ कैन मेजर द नेशनल इनकम. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट? कभी कभी हम किसी नेशनल इनकम को काउंट करते हुए एक ही गुड्स की वैल्यू डबल काउंट कर लेते हैं तो दिस इज नोन एज डबल काउंटिंग. और हम लोगों को यहाँ पे रॉन्ग पिक्चर मिल जाती है इकोनॉमी की. सो इस डबल काउंटिंग से हमें बचना होता है. देन आफ्टर हम हर गुड्स की सिंगल काउंटिंग करते हैं. पहले ये देखिए आप, व्हाट डू मीन बाय डबल काउंटिंग? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी more than once in the measurement of national income is called double counting. Easily understand है. Counting the value of commodity more than once. एक बार से ज्यादा किसी भी commodity की वैल्यू आपने काउंट कर ली तो this is known as double counting. So as far as individual enterprise is concerned, it consider its output as final product. तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? केवल फाइनल प्रोडक्ट को ही काउंट करेंगे बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन फाइनल गुड्स.
So we have discussed already what are the difference between intermediate goods and final goods. Getting students? Now you can see, for example, for a farmer, cotton is a final product. Farmer के लिए cotton क्या होगा? Final product. For a spinning mill, thread is a final product. धागा बनाने की कंपनी के लिए उसका क्या होगा यहाँ पर? Final product, उसका धागा हो जाएगा. All these, और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स क्लोथ मैन्युफैक्चरर के लिए क्लोथ उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा. शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए शर्ट उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा. तो आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि सभी कंपनियां, सभी फर्मों के लिए उनका फाइनल प्रोडक्ट है. ऑल दीज एंटरप्राइज टेक द सेल वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट एज द वैल्यू ऑफ देयर फाइनल आउटपुट. यानी सभी क्या सेल कर रहे हैं? फाइनल आउटपुट. When we take into account the sum total of the value of output of all these individual enterprise in the estimates of national income, it suffer the problem of double counting. यानी अगर suppose that स्टूडेंट ध्यान से सुनो, suppose that आप लोगों ने क्या किया, क्लोथ की वैल्यू ले लिया आपने और उधर फार्मर का कॉटन भी ले लिया आपने, बिकॉज फार्मर के लिए तो उसका कॉटन ही फाइनल गुड्स है. उधर आपने थ्रेड मैन्युफैक्चरर का थ्रेड भी ले लिया है फाइनल प्रोडक्ट में एज ए फाइनल प्रोडक्ट, एंड उधर आपने क्लोथ मैन्युफैक्चरर के लिए क्लोथ भी, यानी सारी कंपनियों के फाइनल प्रोडक्ट ले लिए बिकॉज उनके लिए तो वही फाइनल प्रोडक्ट है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि शर्ट मैन्युफैक्चर, शर्ट की वैल्यू वो कई बार डबल काउंटिंग हो जाएगी, बिकॉज शर्ट में क्या है, शर्ट में कॉटन भी इंक्लूड है, थ्रेड भी इंक्लूड है, क्लोथ भी इंक्लूड है. तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक सजेशन दिया है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड. गेटिंग स्टूडेंट्स? यानी आप ध्यान से सुनिए दोबारा. नॉर्मली अगर सारे पहले ये लाइन सुने, सारे प्रोड्यूसर के लिए उनकी गुड्स फाइनल प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉटन मैन्युफैक्चरर हो एज ए फार्मर, चाहे वो थ्रेड मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो शर्ट मैन्युफैक्चरर हो. और अगर अभी सारे प्रोड्यूसर का आप लोगों ने प्रोडक्ट जीडीपी में काउंट कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. तो हाउ कैन कैलकुलेट जीडीपी, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है. गेटिंग स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि अगर हम सारी फर्मों का प्रोडक्ट लेंगे, एक तो मैंने बताया आप लोगों को कि हम नेशनल इनकम मेजर करते हुए केवल फाइनल प्रोडक्ट लेंगे. इफ वी विल टेक अ फाइनल प्रोडक्ट, सारे प्रोड्यूसर का अपने आप में क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है. तो सर अगर हम फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहां पर तो ऑटोमेटिकली थ्रेड की वैल्यू भी आप बार बार काउंट कर रहे हो, कॉटन की भी कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग होना सर्टेनली, निश्चित रूप से डबल काउंटिंग होगी. गेटिंग स्टूडेंट्स? तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड ही बोला है. गेटिंग? अब देखो इसको ध्यान से, मैं अभी बताता हूं आपको कैसे अवॉइड करेंगे. इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इकोनॉमिस्ट यूज द वैल्यू एडेड मेथड. गेटिंग? वी आर अवेयर दैट द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी फाइनल प्रोडक्ट इज परफॉर्म बाय मैनी फर्म एट डिफरेंट स्टेज. कोई भी जो प्रोडक्ट है वो फाइनल स्टेज से पहुंचते हुए बहुत सारी स्टेजेस से जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी क्लोथ का ही रखो आप, या बिस्किट का देख सकते हैं, पहले व्हीट प्रोड्यूस हुआ, फिर फ्लोर प्रोड्यूस हुआ, फिर बिस्किट प्रोड्यूस हुआ. सेम एज क्लोथ्स के लिए देखो, पहले कॉटन प्रोड्यूस हुई, फिर थ्रेड प्रोड्यूस हुई, देन आफ्टर क्लोथ हुआ, देन आफ्टर शर्ट हुआ. तो डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से डिफरेंट फर्मों से होकर निकलता है. गेटिंग? दस इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी डू नॉट काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. यानी इंटरमीडिएट, ये तो आप लोग अवेयर ही हैं कि इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करते. एंड दिस इज डन थ्रू द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड. गेटिंग? यानी वैल्यू एडेड मेथड से ही आप लोग बच सकते हो डबल काउंटिंग से, और वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से ही हम इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं. गेटिंग? हियर इट विल बी यूजफुल to understand the difference between the two concepts, value of output and value added. So students, value added or you can say value added method से before आप लोगों को दो concept पढ़नी है, पहले value of output और then after value added. Then you can easily understand that how can calculate GDP by the help of value added method or production method. It is clear to students? So now in next page we will discuss value of output. You can see here. Value of output. What do you mean by value of output? Value of output or value of gross output are same thing. Value of output or gross value of output are same thing. Is the total cost of producing gross output. In other words, value of output is the method
is the market value of all goods and services produced by a firm in an accounting year. Very simple. Value of output क्या हुआ? Is the market value, सारी फर्मों का मार्केट वैल्यू, कंट्री में जितनी भी फर्में हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, उन सबकी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस ए फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर. और अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसकी भी हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं. तो सो नॉर्मली क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, फर्मों में जितना प्रोडक्शन हुआ, इजिकल टू क्या हो जाएगा? फिजिकल आउटपुट इनटू प्राइस, यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से. तो क्या निकल जाएगा अभी? वैल्यू ऑफ आउटपुट. बट दिस इज नॉट नेशनल इनकम. गेटिंग? अभी आप सारी फर्मों का क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट. यानी देन आफ्टर द वैल्यू ऑफ आउटपुट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड इज अ जीडीपी. गेटिंग? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड 2 थिंग्स. अब देखो क्या 2 थिंग्स मिलेगी. फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विच वर परचेज बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर फर्म्स. पहली तो इसमें यह है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स होती है जो उसने अदर फर्मों से परचेज किए हैं. एग्जाम्पल से सुनिए यहां पर. सपोज दैट सुगर इज ए फाइनल प्रोडक्ट फॉर सुगर प्रोड्यूसर. गेटिंग? तो सुगर में किसकी वैल्यू होगी? इंटरमीडिएट गुड, सुगर केन की, जो उसने विच वर परचेज बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर फार्म. सुगर केन उसने किससे परचेज किया होगा? फार्मर से. सो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट सुगर हो गया, और उसमें क्या इंक्लूड है? इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज सुगर केन विच परचेज बाय द अदर फार्म. अनदर एग्जाम्पल, क्लोथ में किसकी वैल्यू है? कॉटन की भी है. क्लोथ इज ए फाइनल प्रोडक्ट बाय द क्लोथ प्रोड्यूसर. फाइनल प्रोडक्ट हुआ क्लोथ. गेटिंग स्टूडेंट्स? और उसमें क्या है? क्लोथ फाइनल प्रोडक्ट है, और क्लोथ में इंटरमीडिएट वैल्यू जो उसने अदर फर्म से परचेज किया, यानी उसने थ्रेड परचेज किया होगा ये, और थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने कॉटन परचेज की होगी, तो वो उसमें इंटरमीडिएट वैल्यू भी है जो उसने परचेज की है from other firm. Getting? So value of output include 2 things. First things क्या हुई स्टूडेंट्स? कि value of intermediate goods which were purchased by the enterprise from other firm. एक तो intermediate value, intermediate goods है उसमें जो ओनर ने, एंटरप्राइज ने अदर फर्म से परचेज किया. दूसरा, the value of contribution made by this firm थ्रू इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस और वैल्यू एडेड. एक तो ये हुआ कि उसने अपना जो दूसरी तरफ से परचेज किया है दूसरी फर्मों से, प्लस अपनी वैल्यू एड, अपनी मेहनत जो उसने की है, जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड होता है. लाइक फिर अपने एग्जांपल पे पहुंचिए. सुगर में क्या है स्टूडेंट्स? सुगर में सुगर केन विच आर परचेज बाय अदर फर्म, दैट इज इंटरमीडिएट गुड. और इंटरमीडिएट गुड की हेल्प से उसने सुगर भी तो बनाई, तो अपना भी तो कंट्रीब्यूशन उसने दिया. तो देयर आर 2 थिंग्स इन वैल्यू ऑफ आउटपुट. फर्स्ट थिंग्स इज intermediate goods which are purchased by other firm, and second things the value of contribution made by this firm जो इसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और यही वैल्यू एडिड है. गेटिंग? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज इज आल्सो इक्वल टू द सम ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक. अब देखो ऑफ इन्वेंट्रीज, टोटल आउटपुट है, सपोज दैट शुगर मिल है, टोटल उसका आउटपुट हुआ, तो आउटपुट जाता कहां है स्टूडेंट्स? या तो वो मार्केट में सेल कर देता है. ध्यान से सुनना आप लोग, मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहा हूं. सपोज दैट कोई शुगर कंपनी है, एक कंपनी से ध्यान रखो आप, और टोटल इकोनॉमी पे हम उसी को अप्लाई कर देंगे. सपोज दैट कोई एक शुगर कंपनी है, शुगर कंपनी ने क्या किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी उसका टोटल प्रोडक्शन. गेटिंग? उसने चीनियां बना ली, उसने शुगर बना ली है. देन आफ्टर क्या होगा उसका? द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड एंटरप्राइज इज आल्सो इक्वल टू, वो 2 जगह चला जाएगा, या तो वो मार्केट में सेल कर देंगे, या प्लस जो उसके वेयर हाउसिंग गोदाम है, जो उसकी स्टॉक है, उसमें वो उसको रख देंगे. गेटिंग? तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज इज आल्सो इक्वल टू द सम ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज. स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज जो उसके वेयर हाउसिंग है. इन द केस ऑफ एन ओपन इकोनॉमी, अब एक चीज और देखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहां पर भी. In the case of open economy, what do you mean by open economy? Which country relation to each other in the form of export and import. The sales of goods include, उसकी sales देखना स्टूडेंट, इंक्लूड बोथ द डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट. यानी शुगर कंपनी है, ध्यान से देखो बेटा, एक ही एग्जांपल है, उसी को माइंड में रखो, कंसेप्ट को क्लियर करो. शुगर कंपनी है, अब इसने क्या किया? शुगर देखो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. अब ध्यान से देखो, पहला क्या है कि उसने शुगर को डिस्ट्रीब्यूट किया, सेल किया विद इन डोमेस्टिक कंट्री, यानी इंडिया के अंदर कंट्री में, और उसी शुगर कंपनी ने अदर कंट्री में भी तो एक्सपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट भी तो सेल ही हुआ. गेटिंग स्टूडेंट? तो सेल्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? डोमेस्टिक सेल्स प्लस
सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो अगर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे उसने कंपोनेंट दी होगी, कंपोनेंट गिवन किए होंगे डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, तो यू हैव टू ऐड डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेल्स। गेटिंग? अब सेल्स मैंने क्या बताया था, टोटल आउटपुट पे पहुंच जाइए। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहां कहां जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में भी चला जाता है कुछ पोर्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट 10, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। और सेल्स कहां कहां हो सकती है? अभी ऊपर देखा आपने, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, इन स्टॉक में जो चेंजिंग आता है। सो यू कैन से सिंस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स वन मोर, yes students, one more thing I am talking about, change in stock of inventory is equal to closing stock at the end of year minus opening stock at the beginning of year। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या कोई कंपनी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कोई कंपनी जितना प्रोडक्शन करती है इस ईयर में उससे ज्यादा सेल कर सकती है? नहीं। क्वेश्चन दोबारा सुनो, क्या कोई कंपनी, कोई फर्म जितना उसने प्रोडक्शन किया सेल उससे ज्यादा कर सकती है? नहीं। सो स्टूडेंट्स, पता नहीं आप लोगों के क्या क्या आंसर आए होंगे, तो मैं ही बता रहा हूं आपको, यस इट इज राइट, वो उससे ज्यादा भी कर सकती है, कम भी। अब आपके माइंड में आएगा सर ज्यादा कहां से कर देगी जब उसने प्रोडक्शन बनाया। सपोज दैट किसी कंपनी ने 100 पैकेट शुगर के बनाए हैं, गेटिंग, और उसने 110 सेल कर दिए। हाउ कैन दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल स्टूडेंट। कैसे पॉसिबल होगा? उसने 130 साल के बेच दिए, और बाकी क्या क्या जो उसके गोदाम रखे हुए हैं, जो उसकी इन्वेंट्रीज है, 10 पैकेट उसने वहां से बेच दिए। तो उसने क्या किया? जितना प्रोडक्शन हुआ उससे ज्यादा सेल कर दिया। ऑन द अदर हैंड कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट किसी कंपनी ने 100 प्रोड्यूस किए, शुगर के पैकेट 100 प्रोड्यूस किए, और उसने 90 क्या किए? सेल किए। कितने बचे? 10 का क्या करना है? वो स्टॉक में पहुंच जाएंगे। गेटिंग? तो तभी तो हम चेंज इन स्टॉक को इसमें प्लस करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर अब आप लोग एक चीज और देखिए, सपोज दैट उसने जितना प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा सेल कर दिया, तो उसको तो हमें माइनस करना होगा ना, वो निगेटिव में आ रहा होगा। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि वो लास्ट ईयर की जीडीपी का प्रोडक्ट है, उसने लास्ट ईयर की जीडीपी में प्रोड्यूस हुआ था, वो काउंट कर दिया यहाँ पे। गेटिंग? और अगर स्टॉक में प्लस हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया, पूरा मार्केट में सेल नहीं हुआ, लेकिन सपोज दैट उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस की और 100 में से 90 सेल हो गई और 10 बची, तो 10 उसने कहाँ रखी? स्टॉक में रखी। और इस स्टॉक को भी हम ऐड करेंगे बिकॉज इट इज ए प्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दिस ईयर। गेटिंग स्टूडेंट? सो आई होप क्लियर होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम क्यों इसमें ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक। दोबारा देखिए, चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा? क्लोजिंग। अब ये कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, यानी आज, सपोज दैट हम आज क्लोज कर रहे हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ईयर, उसमें से क्या माइनस करेंगे? जो स्टार्टिंग में था। अब ये जो आप लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है, इट इज डिपेंड ऑन इन्वेंट्रीज। गेटिंग स्टूडेंट्स? अगेन यू सी वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, और सेल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे आप? इट में बी डोमेस्टिक सेल्स और इट में बी एक्सपोर्ट। गेटिंग? प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दिस इज चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी टोटल कंपनियों का आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कंट्री का प्रोडक्शन है, इट इज नॉट जीडीपी। गेटिंग? सारी फर्मों का, अभी इसमें डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर इसको ऐड कर लोगे। ये क्या है? सारी फर्मों का टोटल प्रोडक्शन है बस। गेटिंग? यू कैन सी ऑन नेक्स्ट पेज। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्लियर है? दोबारा सुनो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ यू कैन सी, अब आप लोग आओगे बेटा इस पे, वैल्यू एडिड और ग्रोस वैल्यू एडिड, यही जीडीपी बनेगा, वैल्यू एडिड, बिकॉज देयर आर 3 मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगेन दोबारा सुनिए, 3 मेथड कौन कौन से थे? फर्स्ट इज वैल्यू एडिड मेथड, और यू कैन से प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एंड वी आर डिस्कस हियर वैल्यू एडिड और प्रोडक्शन मेथड। सो स्टूडेंट्स, ग्रोस वैल्यू एडिड कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रोस वैल्यू एडिड इज कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट of a firm in an accounting year and value of input brought from other firms। यानी टोटल कंपनियों का जो आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया है? बाय द हेल्प ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दीजिए, तुरंत वैल्यू एडिड आ जाएगा।
गेटिंग, यू कैन सी ग्रोस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी, यही बनेगा स्टूडेंट जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट ऑफ द फर्म। और वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट मेजर करना आप लोगों ने अभी सीखा है, कैसे करेंगे ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स, दिस इज डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उस फॉर्मूले से क्या बनाया आपने, ग्रोस वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट ऑफ द फर्म, और माइनस क्या कर दिया उसमें से, इंटरमीडिएट कंजप्शन और इनपुट परचेज फ्रॉम अदर फर्म। या तो उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन बोल लो, या जो उस कंपनी ने अदर फर्मों से परचेज किया है। आप लोग इसको ध्यान से सुनो, फिर से मैं शुगर मिल का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। शुगर मिल ने क्या किया, टोटल शुगर प्रोड्यूस की, गेटिंग स्टूडेंट, शुगर प्रोड्यूस की, उसको या तो सेल किया होगा, वो आपने एक डाटा ले लिया, या तो उसने सेल किया होगा, सेल भी उसने या तो विद इन कंट्री डोमेस्टिक सेल्स, या उसने एक्सपोर्ट किया होगा। और अगर पूरी सेल नहीं होती है, उससे ज्यादा की होगी, तो प्लस क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक, उससे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। अब माइनस करेंगे हम डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज जो उसने शुगर केन यूज किया है, उसको इसमें से हटा दो, बिकॉज शुगर केन इज द फाइनल वैल्यू ऑफ फार्मर, उसकी वहां पे ऐड करेंगे। गेटिंग, तो केवल इसकी वैल्यू एडेड आ जाएगी जो उसने अपनी तरफ से चीनी बनाने में ऐड किया, अपना कंट्रीब्यूशन किया है। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। गेटिंग, यानी हर एक कंपनी का हमें वैल्यू ऐड निकालना है, और वैल्यू ऐड कैसे निकलेगा, इट इज वेरी सिंपल, उस कंपनी का टोटल आउटपुट और माइनस कर देंगे उसमें से जो उसने अदर फर्मों से परचेज किया है। अदर फर्मों से जो परचेज है वो क्या हो सकता है, उसका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है, उसका जो भी उसने अदर फर्मों से परचेज किया, केवल आपको उसकी वैल्यू ऐड लेनी है, वैल्यू ऐड। गेटिंग स्टूडेंट्स, जो उसने वैल्यू ऐड की है वो हम उसमें लेंगे। नेक्स्ट यू कैन सी वैल्यू एडेड बाय ए फर्म इज इक्वल टू क्या बन गया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द फर्म। और यू कैन से इन दिस वे वी शुड क्लियर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। किस किस का डिफरेंस, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ए बिगर कंसेप्ट, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, तो ये तो एक बिगर कंसेप्ट है। एंड द वैल्यू एडेड इज ए पार्ट ऑफ इट, यानी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट करो सारी फर्मों का, तो शुगर केन जैसे आप शुगर का वैल्यू ऑफ आउटपुट ले रहे हैं, उसमें शुगर की भी केन की वैल्यू भी आ जाएगी। गेटिंग स्टूडेंट, तो हमें वैल्यू एडेड जब ले रहे होंगे तो सारी इंटरमीडिएट गुड्स को हटा देंगे, उसमें से केवल फाइनल गुड्स लेंगे। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल से और देखो आप लोग यहाँ पर, इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर मैंने 3 फर्में ली हैं आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। ये ग्रोस वैल्यू एडेड का ये फर्म ए फार्मर है, सेकंड में थ्रेड मैन्युफैक्चरर धागे बनाने वाली, फिर क्लॉथ मिल कपड़े बनाने वाली, और फिर रेडीमेड गारमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेज देखो प्रोडक्शन की, पहले आप फर्स्ट यूनिट देखो, फार्मर्स ने क्या किया, ए कॉलम में फार्मर्स है, उसने क्या किया, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कॉटन प्रोड्यूस किया, और वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट सपोज दैट 1000। अब देखो फार्मर एक प्राइमरी एग्रीकल्चर से है, हालांकि वो इनपुट्स यूज करता है, बट अपनी स्टडी को इजी करने के लिए आप लोगों ने एज्यूम किया है कि उसने दूसरी फर्मों से कुछ भी परचेज नहीं किया। गेटिंग, तभी बेटा मॉडल समझ पाएंगे हम। कॉटन 1000 की वैल्यू की उसने प्रोड्यूस की, तो यही उसका आउटपुट हुआ। आपने एज्यूम किया कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन उसने कुछ नहीं किया, नील। अब इसकी ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड, यानी C माइनस डी। C माइनस डी का मतलब क्या है, उसका आउटपुट और जो उसने माइनस अदर फर्म से परचेज किया है। तो आपने एज्यूम किया उसका आउटपुट कितना था, 1000, और उसने अदर फर्मों से कुछ परचेज नहीं किया, तो इस सिचुएशन में उसका ग्रोस वैल्यू आउटपुट और ग्रोस वैल्यू एडेड सेम है। गेटिंग, अब सेकंड स्टेज देखो, सेकंड स्टेज सपोज दूसरे मैन्युफैक्चरर पे चला गया, थ्रेड मैन्युफैक्चरर। थ्रेड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन स्टेज क्या है, उसने थ्रेड धागा बनाया कितने की वैल्यू का बनाया, सपोज दैट 1500 का। गेटिंग, उसने धागे की वैल्यू कितनी हो गई, उसकी मार्केट प्राइस 1500 की वैल्यू का उसने धागा बनाया। अब उसने अदर फर्म, यानी अदर फर्म कौन सी है, धागा बनाने के लिए कॉटन यूज किया होगा, 1000 रुपीज का उसने कॉटन यूज किया। गेटिंग, तो वैल्यू एडेड करने के लिए हमें अदर फर्म से जो परचेज किया है उसने, उसको क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे। तो 1500 रुपए तो उसके धागे की वैल्यू है, और माइनस 1000 क्या है, जो उसने फार्मर से कॉटन परचेज किया, जो कि उसकी नहीं है। उसने कितना वैल्यू ऐड किया अपनी तरफ से, 500। गेटिंग स्टूडेंट, फार्मर ने 1000, क्योंकि फार्मर को आपने एज्यूम किया कि उसने अदर फर्म से कुछ भी परचेज नहीं किया। नेक्स्ट वन, क्लोथ। क्लोथ सपोज दैट मार्केट में 1900 रुपीज की वैल्यू का है। अब क्लोथ मैन्युफैक्चरर ने थ्रेड मैन्युफैक्चरर से थ्रेड लिया होगा, ये देखिए 1500। गेटिंग, एयर यहां पर देखो, उसका क्लोथ मैन्युफैक्चरर का वैल्यू एडेड निकालने के लिए उसका आउटपुट यानी 1900 माइनस परचेज ऑफ अदर फर्म
1500, यानी उसका टोटल अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कितना हुआ कपड़े बनाने वाले का 400। लास्ट स्टेज देखिए शर्ट, सपोज दैट रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने शर्ट बनाया, शर्ट की कितनी प्राइस है मार्केट प्राइस 2500। गेटिंग स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसने क्लोथ परचेज किया है कितने का 1900 का, तो ये उसमें से माइनस कर देंगे 2500 माइनस 19 बिकॉज 2500 इज ए ग्रोस आउटपुट ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स और 1900 इज ए परचेज ऑफ अदर फर्म। कितना वैल्यू ऐड हुआ 600। गेटिंग स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर क्या बन गई फाइनल शर्ट बन गई, कितनी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरी। अब एक चीज देखो सपोज दैट सारी कंपनियों का वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट ले लेते हैं, अगर सारी कंपनियों का वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट लेंगे तो 6900 आ जाएगा। गेटिंग, ये डबल काउंटिंग हो गई स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया 6900 और शर्ट कितनी है ओनली 2500 2500 की, तो यहां पर तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। इस सिचुएशन को, इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया आपने, सारी फर्मों का केवल ग्रोस वैल्यू एडिड ले लिया। ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब केवल उनकी मेहनत, उन्होंने जो अपना ऐड किया, फार्मर का आपने एज्यूम किया था कि उसने अदर फर्म से परचेज नहीं किया तो उसका 1000 था। थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो उसकी मार्केट प्राइस थी 1500 और 1000 उसने परचेज किया था फार्मर से, तो उसकी वैल्यू आ गई 500। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का कपड़ा कितने का था 1900 का। गेटिंग, और उसने दूसरी फर्म यानी थ्रेड मैन्युफैक्चरर से धागा कितने में परचेज किया था 1500 का, उसकी वैल्यू एडिड कितनी आई ओनली 400। और लास्ट जो शर्ट मैन्युफैक्चरर है, शर्ट कितने की बनाई उसने 2500 की, लेकिन उसने क्या परचेज किया था 1900 का क्लोथ परचेज किया था। गेटिंग स्टूडेंट्स, 1900 इसमें से माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू ऐड कितनी आ गई 600। सो स्टूडेंट, अगर सारी फर्मों का वैल्यू ऐड निकाल दे तो कितना आ जाएगा 2500 और शर्ट कितने की थी मार्केट वैल्यू 2500। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि केवल हम सारी फर्मों का वैल्यू ऐड ही लेंगे तभी जीडीपी कैलकुलेट होगी। और वैल्यू ऐड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी फर्मों का फाइनल प्रोडक्ट और उसमें से माइनस कर दो परचेज ऑफ अदर फर्म। इट इज वेरी सिंपल, सारी फर्मों का फाइनल प्रोडक्ट, जितनी भी मार्केट में फर्म है सारी का फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं जो उसने अदर फर्म से परचेज किया। इजिली हम क्या निकाल लेंगे वैल्यू एडिड। सो स्टूडेंट्स, द रिवील्स देखो दैट ग्रोस वैल्यू एडिड बाय द ऑल फर्म्स आर रिस्पेक्टिवली, वही आ जाएगा आपका 1500 400 600 इफ देयर आर ओनली 4 फर्म इन द कंट्री। आपने एज्यूम किया है कि देयर आर 4 फर्म, द कंट्रीज ग्रोस वैल्यू एडिड कितना आ जाएगा 2500। सो स्टूडेंट्स, वैल्यू एडिड कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस वैल्यू एडिड कैसे करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे परचेज ऑफ अदर फर्म। इट इज वेरी सिंपल। गेटिंग स्टूडेंट, सो this is sufficient for today and I will discuss tomorrow it continue। अभी वैल्यू एडिड में मुझे और भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, तो we will continue in tomorrow। getting, so thank you so much students and today जो आपका टॉपिक था टोटली थ्योरेटिकल था। I will send PDF for tomorrow with your notes and please do in your copy। Thank you so much।